Okay, so let us continue with more questions. Probably this is the last question on what we have learned so far. Two long parallel wires going into the plane of the paper are separated by a distance r. तो आपके पास दो long straight wire है separated by distance r and they are going into the plane of the paper. So first of all, let us show two wires over here. This is wire number one and you have a wire number two over here. And they are separated by a distance r. So the distance of this wires is r. ये दोनों के दोनों they are going inside, इसलिए I will put a cross here. This cross has nothing to do with magnetic field. This is just the wires going inside and the current will also go inside, right? Then they carry a current I in the same direction. दोनों में current I है which is in the same direction. So that the magnitude of magnetic field at a point P equidistant from the wires and subtending angle theta from the plane containing the wires is given by this equation. ये prove करना है मतलब basically. And they're also asking you what's the direction of the magnetic field. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए equidistant point lies at perpendicular bisector. तो यहाँ पे ये जो perpendicular bisector होगा तो let us say P point is over here. इस P point पे आपको field find करना है, magnetic field find करना है. And moreover, one important piece of information that is given to you is जिस point पे आपको field find करना है, it subtends an angle theta from the plane containing the wire. As I told you last time also, let's assume ये जो book है, this is the plane in which you have both the wires. So both the wires are basically going inside like this, right? तो magnetic field find करने के लिए what you do is आप पहले तो वायर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब एक लाइन ड्रॉ करोगे पहले. सेम इज हियर आल्सो. ओके, सो दिस एंगल ओवर हियर इज गिवन टू बी थीटा और दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा. तो ये एंगल थीटा है. नाउ डिपेंडिंग ऑन, अभी बुक टू बुक वेरी करता है, जो भी है, यू कैन कॉल दिस एज वायर वन और वायर टू. किसी को भी कोई भी नाम दे दो, वायर वन और वायर टू. याद रखना, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, मैंने कल के सेशन में बताया था आपको, मैं वापस रिपीट करता हूं. इफ यू रिमेंबर, फॉर एनी वायर कैरिंग अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P according to right hand thumb rule is going inside here in this case. मतलब it is perpendicular to the line from the wire. अभी ये जो लाइन है, अगेन फॉलो दिस, हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट है, एक पॉइंट है P जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था. ओके, देन इफ यू सी, आप इस लाइन से, इस वायर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट P. इसको अगर मैं R बोलता हूं, स्मॉल r, a, जो भी बोलना है वो बोल दो. इफ यू सी, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, मतलब उस लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 90 डिग्री. कौन सी लाइन में? जो लाइन वायर से उस पॉइंट तक आपने ड्रॉ किया है, वायर से उस पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ किया है, उस लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री, मतलब दे आर परपेंडिकुलर. तो ये याद रखना. नाउ लुक हियर, यू कैन कॉल दिस डिस्टेंस एज a. लेट अस से ये भी a और ये भी a. फर्स्ट वायर और उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है a. Did you draw a line from first wire to P point? Yes. As I told you, इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? Which direction? Perpendicular. मतलब here, this is the direction of B1. यह है direction of B1. It is making angle of 90 degree. Correct? Similarly,
सिमिलरली सेकेंड वायर के लिए भी, अब ये सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है a, so you have from 2 to point p distance as a. इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर, सो मैग्नेटिक फील्ड विल गो समवेयर ओवर हियर, तो दिस इज परपेंडिकुलर, इट लुक्स लाइक परपेंडिकुलर, ओके गुड। तो ये आ गया आपका B2। तो अब तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ दो वायर्स लिए विच आर गोइंग इनटू द inside the plane of the board, in this case equidistant point पहले मार्क कर लिया, and of course according to the question आपको बोला है कि दो वायर का डिस्टेंस कितना है r, तो ये होगा r/2 और ये भी होगा r/2 if this is the midpoint, let us say, right? तो r/2 and r/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना दिया था आपको, r दिया था। देन अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, फ्रॉम देयर वी हैव लर्न्ड, अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसका आपको एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आपको एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन करो, दैट इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर a, this is distance a, and as you can see magnetic field is perpendicular to this line a because magnetic field is going inside। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये पॉइंट यहाँ भी लोगे तो, even if you take this point over here, सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि at this point magnetic field is coming out but it is still making 90 degree। तो ये पता होना चाहिए कि magnetic field is making 90 degree, that is important thing। तो वायर नंबर 1 से P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ किया आपने, तो इस लाइन को, मतलब A लाइन को B1 विल बी परपेंडिकुलर, एंड सेकंड से P पॉइंट तक एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया है, B2 विल बी परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर? अगर ये नहीं समझेगा तो आगे का एंगल नहीं समझेगा। इज दिस क्लियर? राइट, आई एम रिपीटिंग अगेन। लुक, द थिंग इज, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, इट इज जस्ट दैट कि पहले आप वायर को, डू आई हैव समथिंग वेरी गुड, पहले आप वायर को ऐसा देख रहे थे, करंट वाज गोइंग बॉटम टू टॉप, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हियर इज गोइंग इनसाइड, करेक्ट? इस वायर से एक डिस्टेंस आपने लिया है, कौन सा डिस्टेंस लिया है? मिनिमम डिस्टेंस, राइट? सो इट बिकम्स अ लाइन हियर फ्रॉम वायर टू दैट पॉइंट, एक लाइन है, करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द मैग्नेटिक फील्ड? 90 degree, correct? Now only thing is you're looking at the wire like this, you're looking from here because you see wire is going inside, correct? ये वायर है, वायर नंबर 1 बोल दो, 2 बोल दो, doesn't matter, एक पॉइंट है यहाँ पे, you want to find out what is magnetic field at this point, फिर क्या करोगे? मिनिमम डिस्टेंस, मतलब एक लाइन ड्रॉ करोगे, करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इट इज नॉट इनसाइड नाउ। इस लाइन को परपेंडिकुलर, इमेजिन अ लाइन, ओके? अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ये हो गई आपकी वो लाइन, दिस इज दैट लाइन, राइट? इस लाइन को परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर, करेक्ट? राइट, गुड, आर वी गुड हियर? सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है यहाँ पे, ओनली थिंग इज दैट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। तो पहली लाइन को परपेंडिकुलर, पहली वायर को परपेंडिकुलर, सो द एंगल दैट यू शुड गेट हियर इज 90 डिग्री। अभी क्लियर हुआ? सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सेकेंड वायर, सेकेंड वायर इज ऑल्सो गोइंग इनसाइड द प्लेन, जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से लेके तो सेकेंड वायर तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये एंगल भी होगा आपका 90 डिग्री। इज दिस क्लियर नाउ? गुड, इफ इट इज क्लियर नाउ लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमको काम में आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। सो लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हम ड्रॉ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं सो एज टू डिफाइन सम एंगल्स।
हमको कुछ एंगल की जरूरत है यहाँ पे, दैट इज व्हाई वी आर ड्राइंग दिस लाइन, अदरवाइज इज नो यूज ऑफ दिस लाइन। ओके, तो बाय द वे ये B1 ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है उसको बोल देंगे फाई, सो विल कॉल दिस एंगल एज फाई, विल गिव इट सम नेम, angle phi. Why angle phi? Because I cannot use theta anymore because theta is already reserved. तो मैं थीटा नहीं यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ एंगल बोल दिया फाई। आपको बीटा बोलना है, अल्फा बोलना है, डेल्टा बोलना है, इट इज अप टू यू, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। ओके, क्लियर? सिमिलरली B2, ये जो B2 है, B2 ने भी जो एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये भी होगा आपका एंगल फाई। क्लियर? इसका मतलब B1 का एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, विच कंपोनेंट? B1 cos phi। सिमिलरली B2 का भी एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, B2 cos phi। वेरी गुड, सो दिस इज B2 cos phi। ओके, सिमिलरली B2 का एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, B2 sin phi, so this is B2 sin phi। और B1 का एक कंपोनेंट होगा B1 sin phi but directed downwards। Why directed downwards? Because obviously if you see B1 जो है it is pointing in fourth quadrant whereas B2 is pointing in first quadrant, तो कंपोनेंट्स होंगे। ओके, नाउ B1 sin phi और B2 sin phi कैंसलेशन कब होगा? जब B1 और B2 का P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट? तो पहले चेक कर लो कि मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। बाय द वे, टू डू दिस आपको ये पता होना चाहिए दैट मैग्नेटिक फील्ड at some point at a distance a from wire is given by mu 0 by 4 pi 2 I by a। मतलब किस पे डिपेंड करेगा? करंट और डिस्टेंस पे। लुक एट द केस ऑफ वायर 1। वायर 1 के लिए करंट कितना था? I। P पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? A। वायर 2 के लिए करंट कितना है? I। P पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? A। मतलब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन ऑफ कोर्स दिख ही रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, B1 एंड B2 आर डिफरेंट, सो यू कैन सी दैट। तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I बाय A, राइट? बिकॉज B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे कैंसल आउट। ओके, so vertical components will cancel out, ये पता होना चाहिए। okay, so vertical components cancel out, right? And because vertical components cancel out, so net magnetic field at point P will be B1 cos phi plus B2 cos phi. Horizontal components, they are pointing in the same direction, they will add up. Therefore net magnetic induction या field, जो भी बोलो, field at point P is B1 cos of phi plus B2 cos phi, but as you remember magnitude of B1 is equal to B2, right? इसको मैं फिलहाल ठीक है बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, डोंट वरी। सो दिस विल बी 2 times of B1 cos phi, राइट? यहाँ तक क्लियर? हमें ये प्रूव ही करना है। वैसे यू वांट टू फाइंड आउट B, equation for B, आपको कैलकुलेशंस करने नहीं है, you just want an equation for B, but if you see B is in terms of theta and you have phi,
तो you need to now first of all find a relation between phi and theta. तो अगर आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो it is easy. Phi is what is this angle phi in terms of theta? No, I am telling you what is the relation between phi and theta. How can you find out angle? What is phi in terms of theta? That is what I'm asking you. 90 minus, correct, 90 minus theta. Okay, 90 minus theta या 90 minus 2 theta check कर लेना एक बार. It is easy. I'm giving you a hint. ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये टोटल एंगल थीटा होगा. ओके, राइट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव वन एंगल एज 90, तो उसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट फाई एज 90 माइनस थीटा. तो सॉल्व कर लेना. तो फाई फ्रॉम दिस डायग्राम इज 90 माइनस थीटा. कर लेते हैं, कुछ गलत हुआ तो देख लेंगे, जो भी होगा. तो 2b1 cos of 90 minus theta. What is cos of 90 minus theta? Sin theta. So 2b1 sin theta, right? But b1 was, if you remember, mu 0 by 4 pi 2 I by a sin theta. अब आपके पास sin theta तो आ गया, लेकिन your requirement is sin of 2 theta, and you don't need a, you need r. So now you see theta here. What is cos theta? Adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side from this triangle PC and let us say PCB. Cos of theta is adjacent side मतलब BC upon hypotenuse मतलब PB. Okay, so from figure what you can say is cos of theta is adjacent side which is BC upon hypotenuse which is PB. So cos of theta is r by 2 upon a, which gives you a equal to r upon 2 cos theta, right? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore, equation 1 becomes b equal to क्या था? 2 mu 0 by 4 pi 2i by a, but a is r upon 2 cos theta, और ऑलरेडी एक sin theta था. sin theta था वहां पे. Yes. Do you remember what is 2 sin theta cos theta? No, 2 sin theta cos theta is sin of 2 theta. Sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta. Okay. तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा याद है, so this term is sin of 2 theta, right? और ये 4 और ये 4 कैंसल, तो mu 0 by 4 pi I by r sin of 2 theta. 4 तो कैंसिल कर दिया, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है. mu 0 by pi I by r sin of 2 theta. mu 0 by pi I by r sin of 2 theta. Done? Good? Is this good? मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. थोड़ा सा आपको बेसिक्स यू विल नीड हियर, और बेसिक में सिर्फ एक ही चीज जो मैंने आपको बताई, you need to understand that so far you have been looking at wire like this. तो आप वायर को साइड से देख रहे हो, कभी बॉटम से देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. ये वायर था जिसमें करंट आया था, एक पॉइंट P था. अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव लर्न सो फार, उस P पॉइंट से वायर तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है विच इज A. मैग्नेटिक फील्ड will be going inside if the point P is there. If point P is here, it will be coming out. But in any case, ये जो आपने वायर से लेके तो P पॉइंटर लाइन ड्रॉ की, लेट अस से PC, इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो इसका यूज कहाँ किया हमने?
हमने बोला कि ये वायर है विच इज गोइंग इनसाइड, अब आप उसको साइड से नहीं, आप उसको बॉटम से देख रहे हो वायर को, तो यू आर लुकिंग एट दिस वायर like this from the bottom and current is going away from you, correct? ये वायर था, वायर नंबर 1। एक पॉइंट है समवेयर ओवर हियर, वहां पे आपको फील्ड फाइंड करना है, राइट? तो एक लाइन ड्रॉ करोगे और इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये समझना जरूरी था, विच इज व्हाट वी हैव शोन, वायर 1 को B1 परपेंडिकुलर और वायर 2 को B2 परपेंडिकुलर। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, आपको जो भी दिया है उन्होंने बोला है दैट दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा, ओके? तो ये थीटा आ गया। देन आपने एक एंगल डिफाइन कर लिया फाई, विच इज द एंगल मेड बाय B1 एंड B2 विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, करेक्ट? हॉरिजॉन्टल। तो ये फाई है तो इसका B1 cos फाई और ये आएगा B2 cos फाई। B1 sin फाई एंड B2 sin फाई आर वर्टिकल कंपोनेंट्स, दे आर अपोजिट। इक्वल है कि नहीं वो बाद में चेक किया हमने। यस, दे आर इक्वल and opposite and acting at the same point and hence there will be cancellation, तो vertical components तो cancel हो गए, good। then what is left is only horizontal components, वो होंगे add up to give you total magnetic field where at point P, and that is B1 cos phi plus B2 cos phi, but B1 and B2 were equal to 2 B1 cos phi, but then phi is 90 minus theta, so you put 90 minus theta, so you have 2 B1 sin theta and B1 की वैल्यू डालो, बट आंसर तो हमको इन टर्म्स ऑफ R दिया है और 2 थीटा है, तो R दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इफ यू टेक cos थीटा, इट इज adjacent side upon hypotenuse, so you will see it is BC by PB, so cos theta is R by 2 by A, so A is R upon 2 cos theta, put A equal to R upon 2 cos theta in equation number 1, सिंप्लीफाई करो एंड यू गेट योर आंसर, राइट? कंप्लीट नहीं हुआ, वेट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल, इट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन इन दिस केस, सो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल। Okay, so let us start with next topic, and that is the last topic of this chapter, cyclotron. तो basically cyclotron क्या होता है ये पता होना चाहिए। Have you heard of cyclotron? Yes? No? Any one of you? No? Have you heard of any particle accelerator? बीच में बहुत ज्यादा ऐसा न्यूज में आ रहा था, ये ऐसा होगा, फिर ब्लैक होल बन जाएगा, फिर वो हो जाएगा। That was just a hoax, ऐसा कुछ होगा नहीं, but if you have heard, somewhere in Europe you have the world's largest particle accelerator. Particle accelerator की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि because some experiments you need to collide, you need to make collision of two very fast moving particles. क्यों? Because you want to know कि initial universe में क्या हुआ था। What you know today is, first of all, जितना आपको पता है, that is only 4% of the universe, not even 4, 96% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, यू नो नथिंग अबाउट इट। तो हम जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरा यूनिवर्स जितना भी हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वट एवर इट इज ओनली 4% ऑफ द टोटल मास कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो इनिशियल फेजेस में, एंड ऑफ कोर्स विथ टाइम यूनिवर्स हैज इवॉल्व्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन था, उससे पहले हाइड्रोजन से पहले you don't know what was there before Big Bang. So I don't know what happened before Big Bang. No one knows at this stage. But after that, Big Bang होने के बाद protons और electrons बने, and you had protons separate and electrons separate, right? Then there was a time when these particles came together. Why they came together? क्योंकि Big Bang is like a explosion. Explosion generates a lot of heat. जब टेम्परेचर हाई होता है, तो आपने सीखा है हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे जैसे कूलिंग डाउन स्टार्ट हुआ, तो दिस पार्टिकल्स स्टार्टेड कमिंग टुगेदर
एंड ऑफ कोर्स एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आके क्या बनेगा, क्या बनेगा, नहीं एक प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन एटम, लेकिन कौन सा एटम, हाइड्रोजन. So that is why you will find this universe contains maximum amount of hydrogen, क्योंकि basic ही वो है. So electrons and protons came together and you have hydrogen. And then hydrogen के बाद तो हमारे पास पूरे गैस क्लाउड्स थे of hydrogen, right? Then somewhere density changed. डेंसिटी चेंज होना, डेंसिटी बढ़ना, डेंसिटी बढ़ता तो क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ सिंक. देखा है आपने वो, कभी आपके घर में जो सिंक होगा उसको पहले पानी से भर दो और बाद में उसका जो आउटलेट का पाइप है ओपन करो, क्या होता है, सारा का सारा पानी इट गोज टुवर्ड्स द आउटलेट. तो इनिशियली यू हैड हाइड्रोजन एवरीवेयर, फिर थोड़ा सा डेंसिटी में चेंज हुआ. डेंसिटी में चेंज होना मतलब ऑल द हाइड्रोजन गैसेस started going towards a single point. Then they started fusion. पता है फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूज होना. न्यूक्लियर फ्यूजन सुना है, न्यूक्लियर फ्यूजन when two nucleus और atoms combine to form heavier elements, फिर हीलियम बना, फिर बाद में ऑक्सीजन बना, कार्बन बना, so on so forth, right? So now after so many billions of years we are at this situation. बाद में planets बने. I am not going into details, but initial phase में क्या हुआ वो समझने के लिए दो particles का high velocity particles, highly energetic particles का collision करवाना पड़ता है to understand what happened in the initial scenario of formation of universe. So we will not go into detail, but जरूरत है, you need to have particles moving with very high speed. You can say 10 power 6 meter per second. What is speed of light? 3 into 10 power 8. उतना तो नहीं जा सकते, but 10 power 6 और 10 power 5 meter per second इतने high speed particle की जरूरत है. तो अब how can you accelerate something? कैसे एक्सीलेरेशन प्रोड्यूस करोगे, अपने आप तो होगा नहीं. आप ऐसा भी नहीं कर सकते मैं पार्टिकल को जोर से धक्का दूंगा, इट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, इट विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी. ऐसा भी नहीं होता है. कभी किया है क्या, मैंने पार्टिकल को धक्का दिया, धक्का देते गए, ऐसा तो होता नहीं है. सो यू नीड टू हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड साइक्लोट्रॉन इज वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स. तो साइक्लोट्रॉन में बेसिकली क्या करते हो, आई विल नॉट राइट मच थ्योरी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी हियर, बहुत सारा थ्योरी है. आई विल नॉट राइट डाउन थ्योरी, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन मैं ओरली बताने वाला हूं. सो व्हाट हैपेंस इज you make a machine which will do this work for you. So cyclotron is one of the particle accelerators. So what is cyclotron? It is a particle accelerator, and it can accelerate particles to velocities as high as 10 power 6 meter per second. Right? इंट्रोडक्शन में इतना ही पता होना चाहिए कि दिस इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर. दैट्स इट. ओके, मतलब और कौन से पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स. ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन्स को नहीं एक्सेलरेट कर सकते आप. यू कैन नॉट यूज दिस डिवाइस टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, बट यू नीड टू हैव चार्ज पार्टिकल्स. एंड कंस्ट्रक्शन इट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव two D-shaped hollow metallic plates. You know what is hollow? What is hollow? Empty inside. हमारी भाषा में पोकल बोलते हैं. It is empty inside. तो आपके पास two D-shaped plates. So you can see this is one D plate here and another D plate over here. And this is hollow inside. क्योंकि यहाँ पे हमको इस प्लेट के अंदर चार्जेस को भेजना है, तो यू नीड टू हैव हॉलो पार्ट इनसाइड, राइट. ओके, और ये जो दो D है, D1 एंड D2, इसको हम बोलते हैं Ds. इट इज नॉट कॉल्ड एज Ds, इट इज Ds, DEES. ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलर प्लेट्स which are called as Ds, D1 and D2. Then ये चैप्टर का पहला या दूसरा लेक्चर. मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, बट व्हाट डज मैग्नेटिक फील्ड डू देन? चेंज द पाथ.
मतलब आपको जो भी चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल को व्हाट यू आर सपोज टू डू इज उस चार्ज पार्टिकल का पाथ अगर आपको सर्कुलर करना है, इफ यू वांट द पार्टिकल टू मूव इन सर्कल्स, एंड डेफिनेटली यहाँ पे पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल विथ इंक्रीजिंग रेडियस, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं दिखाया, आई कुड हैव शोन दिस राइट, बट यहाँ पे सर्कुलर पाथ है बट विथ इंक्रीजिंग रेडियस। तो जब आपको किसी भी मूविंग पार्टिकल का, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन बाय Q V बार क्रॉस B बार, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट करता है, ओनली व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग एंड इट हैज चार्ज, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो दिस डिवाइस इज ऑफ नो यूज। सेकेंडली इफ देयर इज न्यूट्रॉन इट इज अगेन ऑफ नो यूज, क्योंकि Q, न्यूट्रॉन हैज नो Q, डज इट हैव एनी चार्ज, no, so it does not, neutrons cannot be used to accelerate this, I mean this machine cannot be used to accelerate neutrons, तो neutrons के लिए कोई काम का नहीं है। anyways, so what you are supposed to do is आपको path of the particle को circular बनाना है, that is why you need a magnetic field, and you see here you have electromagnets, तो यहाँ पे एक north pole है, this is south pole, and these two D's, ये जो D1 और D2 प्लेट्स है राइट, इस प्लेट्स को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सो यू सी मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग एट राइट एंगल, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द D's, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द D's, अगर पैरेलल रख दिया तो नथिंग विल हैपन, इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, इट विल कीप गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, ओके, बिकॉज व्हाई, फोर्स इज गिवन बाय Q V बार क्रॉस B बार, मतलब Q V B sin थीटा, इफ एंगल इज 0 sin 0 इज 0, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स, जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो फिर देन देयर इज नो यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। देन वन थिंग इज मिसिंग हियर, इसको आप एक इवैक्यूएटेड सिलेंड्रिकल चेंबर में रखते हो, मतलब ये जो दो डीज है दे आर केप्ट इन इवैक्यूएटेड सिलेंडर, इवैक्यूएटेड मतलब all the gas is taken out, so there is nothing, there is vacuum here, okay, right, then you have ये जो दो डी प्लेट्स है, इस दो डी प्लेट्स को आप एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर बोलते हैं इसको, यू कनेक्ट दीज टू डीज विथ हाई फ्रीक्वेंसी, the frequency is as high as 10 power 7 cycles per second, मतलब समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है, यू हैव टू लुक एट दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो दो प्लेट्स थे D1 एंड D2 राइट, इसको आपने कनेक्ट किया विथ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका फ्रीक्वेंसी है एज हाई एज 10 पावर 7 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मान लो ये जो प्लेट D1 है ये पहले पॉजिटिव था और ये जो D2 है ये नेगेटिव था, सो वन ऑफ दिस वाज पॉजिटिव एंड द अदर वाज नेगेटिव राइट, फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, मतलब इन दोनों का पोलैरिटी चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस राइट, कितना टाइम, 10 पावर 7 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 10 पावर 7 टाइम्स, 10 पावर 5 is 1 lakh right, 10 पावर 6 is 10 lakh, 10% is 1 crore, तो that is the frequency here, so high frequency, क्यों करना पड़ता है, we'll see later, इसको देखेंगे। और याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब ये जो हमने अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर जो लगाया है ना यहाँ पे, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाय डिफॉल्ट होता है, बिकॉज बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by L, potential difference per unit length, so if you put alternating potential matlab you are applying electric field basically, okay, so this is the case where which force will act, Lorentz force, because you have electric field as well as magnetic field, okay, so you have a high frequency oscillator here,
राइट। देन मैंने आपको बताया इसका फ्रीक्वेंसी था 10 पावर 7 और इसका जो वोल्टेज होता है दैट इज अराउंड 10,000 वोल्ट्स। सो हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है यहाँ पे, हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है यहाँ पे। ओके, देन magnetic field here is roughly of the order of if I'm not wrong 10 power 5 Gauss, 10 power 5 Gauss का यहाँ पे magnetic field होता है। Of course you can convert it into Tesla. How much is this? Around 1 Tesla, 1 or 1.5 Tesla, क्योंकि if you remember, do you remember conversion factor? Do you remember conversion factor? 1 Tesla is how many Gauss? 10 पावर माइनस या फिर प्लस। हाउ मच इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर? 100, करेक्ट, राइट। तो पहले तो ये समझ लो कि एसआई यूनिट दे आर बिगर देन सीजीएस, इसलिए 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज 1000 grams. तो 1 Tesla will be 10 power plus 4 or minus 4 Gauss? Plus 4 Gauss. तो 1 Gauss is 10 power minus 4 Tesla. तो by the way, ठीक है, conversion you can do later, but you have a magnetic field of around 10 power 5 or 4 Gauss, मतलब 1 से 10 Tesla के बीच का फील्ड होगा ये, right? तो magnetic field is perpendicular to the D's, right? तो basic construction समझा? It consists of two hollow metal semicircular plates, right, which are called as Ds, D1 and D2. These Ds are kept perpendicular to the magnetic field. You have two poles of electromagnet to generate magnetic field of roughly of the order of 10 power 5 Gauss. These two Ds are connected to high frequency oscillator of roughly 10 power 7 frequency and voltage 10,000 volts approximately. These two Ds are basically kept in an evacuated cylinder, right? There is a small window. क्यों विंडो यहाँ पे? पार्टिकल्स को एक्साइट करके क्या करना था? कोलिजन के लिए भेजना था, अब तो बाहर निकलना चाहिए ना। So there is a small window from which you can have high energy, high velocity particles coming out and they will hit the target. Right? यहाँ तक clear? Good. Now let us see how it works. तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। हमने चार्ज पार्टिकल का कोई सोर्स दिखाया गया यहाँ पे? नहीं। तो यू कीप अ सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल राइट इन द स्पेस बिटवीन द टू डीज। तो ये जो दो डी शेप प्लेट्स थे वो उनके बीच में थोड़ा सा गैप था, एंड यू कीप अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज राइट इन द सेंटर। सो यू सी हियर दिस इज सोर्स ऑफ चार्ज। तो इफ you cannot notice, I will put a green dot here, and normally this is radioactive substance emitting alpha particles. Radioactivity हम सीखेंगे आगे, right? Radioactive substance मतलब what is radioactivity? Have you heard of radioactivity? Yes. What is radioactivity? Have you heard of uranium? Yes. यूरेनियम बेसिकली होता क्या है? सम न्यूक्लियस आर स्टेबल एंड सम आर अनस्टेबल। अब वो हम कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल वो बाद में आएगा। इट इज देयर इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट एनीवेज यू हैव सम न्यूक्लियस व्हिच आर अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियस वांट टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट? तो टू अचीव स्टेबिलिटी दे emit either particle or energy. They can emit बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोलते हैं बीटा माइनस। मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अभी तक आपने सीखा इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिवॉल्विंग, yes they only revolve around nucleus, but they can also be produced inside the nucleus and can be thrown out. बीटा माइनस। और एक होता है बीटा प्लस, पॉजिट्रॉन बोलते हैं उसको। इट इज नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही। प्रोटॉन का मास is 1.6 into 10 power minus 27. इलेक्ट्रॉन मास is 9 into 10 power minus 31.
और एक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज है प्लस ई, लेकिन उसका मास है इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट ऑफ प्रोटॉन, उसको बोलते हो पॉजिट्रॉन। तो दिस टू emissions from a nucleus are called as beta emission. Okay, फिर अल्फा पार्टिकल भी इमिट कर सकता है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि 2 ही प्रोटॉन थे, राइट। एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस कैन आल्सो इमिट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, वो बाद में देखेंगे, राइट। तो नॉर्मली यहाँ पे हम रखते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई विच इमिट्स बीटा पार्टिकल, मतलब हीलियम न्यूक्लियस। ओके, राइट। सो और बाय द वे न्यूक्लियर अभी आपने सुना होगा इन फ्यू इयर्स बैक, हमारे पास तो यूरेनियम है नहीं। व्हाट इज यूरेनियम? अनस्टेबल न्यूक्लियाई, राइट। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास है नहीं, तो वी आर बाइंग इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिकॉज energy requirement of this country is increasing day by day. So we are buying it from Australia since 2017, if I'm not wrong, and we are buying the technology somewhere from, I think, France. So anyways, तो पता होना चाहिए, you need to keep yourself updated. So anyways, यहाँ पे एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जो पार्टिकल्स इमिट करेगा, पार्टिकल इमिट करेगा। कौन सा? लेट अस से हीलियम न्यूक्लियस, मतलब कौन सा? पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या करना था हमको? हमको इसको एक्सेलरेट करवाना है टू वेरी हाई स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पार्टिकल कौन से प्लेट की तरफ जाएगा? नेगेटिव। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है थ्रू अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो जैसे ही पार्टिकल इमिट हुआ तो ये प्लेट था, दिस वन आई विल कॉल दिस एज लेट अस से D2, दिस इज D1। ओके, नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नेगेटिव था। तो जैसे ही पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट होगा, ऑफ कोर्स इट शुड गो टुवर्ड्स D2, राइट। अब D2 तो ये स्ट्रेट ही निकल जाएगा, it will go straight. Why it should turn? Why it should make curves? सर्कुलर पाथ क्यों मिलना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है which is going inside the plane of this board now, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये D जो है ये आप साइड से देख रहे थे, एज ऑन व्यू। अब इसी D को आप फेस से देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज गोइंग इनसाइड। तो कहीं पे लिखा होगा मैंने, आई डोंट नो, समवेयर आई हैव रिटन। हाँ, ये एरो जो है इट इज शोइंग यू मैग्नेटिक फील्ड। सो ओके, एनीवेज, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। ओके, तो जैसे ही पार्टिकल इमिट हुआ, दैट पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल था, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव। वर्क डन किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, राइट। बट देन मैग्नेटिक फील्ड वाज आल्सो देयर। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? इसके पाथ को कर्व कर दिया, इसी कर्व, करेक्ट। देन व्हाट हैपेंस व्हेन द पार्टिकल्स कम्स आउट? पार्टिकल जैसे ही D2 से बाहर निकला, लुक एट द सिचुएशन नाउ। जैसे ही पार्टिकल D2 से बाहर निकलेगा, बट वेट अ मिनट, D1 तो तब पॉजिटिव था और पार्टिकल भी पॉजिटिव है, विल इट नॉट अपोज? रिपल्शन होगा। दैट इज वाई जैसे ही ये पार्टिकल बाहर आया, इमीडिएटली पोलैरिटी चेंज होना चाहिए, राइट। तो नंबर 1, एक तो पोलैरिटी चेंज हुआ है उसका, तो इट फील्स मोर अट्रैक्शन नाउ, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन। तो वापस से ये इतना पाथ कवर करेगा, और जैसे ही यहाँ पे बाहर आया, अगेन द पोलैरिटी शुड चेंज, एंड दैट इज व्हाई यू नीड अल्टरनेटिंग electric field, high frequency oscillator, right? Good. So what happens is, हर बार, every time when the particle comes out from one of the D's, सामने वाला D नेगेटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो सामने वाला D नेगेटिव। फिर नेक्स्ट साइकिल में वापस जैसे ही ये बाहर आएगा, D2 will become negative. फिर नेक्स्ट साइकिल में अगेन D1 will become negative. So this is how it keeps going. करेक्ट। तो जितना हमको वेलोसिटी चाहिए था
जैसे ही वो वेलोसिटी मिल गया तो यू शुड बी टेकिंग दिस बीम आउट फॉर योर एक्सपेरिमेंट. So there is a small window from which beam can come out, and you can directly focus this beam on the target. So this is how it works. So this is what you need to know. Okay, right? अभी तक तो ये it was like a story. हाँ ऐसा है, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा. Where are equations? You need to know equations. So first of all, okay, तो equations. Tell me one thing. अभी अभी आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है, मतलब क्या करता है, कर्वेचर देने का काम करता है. मतलब पार्टिकल का सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स कंपल्सरी चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. And you know this is QVB, this is MV square by R, right? Good. So cancel and cancel. So from here you can have radius of the path. एक मिल गया इक्वेशन नंबर 1. तो कम से कम रेडियस का इक्वेशन है, यहीं से वेलोसिटी का भी इक्वेशन बना सकते हो, बट वी विल सी दिस लेटर, राइट? तो यू हैव इक्वेशन फॉर रेडियस. एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, हर बार जब डी से बाहर निकलेगा तो पार्टिकल विल हैव मोर वेलोसिटी, राइट? तो यू सी एम तो कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट. मास ऑफ द पार्टिकल चेंज होगा क्या? नहीं. चार्ज चेंज होगा? नहीं. मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया? नहीं. इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू V. हर बार पार्टिकल जब बाहर आएगा उसका वेलोसिटी होगा ज्यादा, मतलब उसका रेडियस होगा ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई इट शुड फॉलो दिस पाथ. एवरी टाइम इट शुड keep on increasing its radius. Okay, then ये आ गया इक्वेशन. बट वेट अ मिनट, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस. एक इक्वेशन में क्या होगा? वी आल्सो वांट टू नो व्हाट इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द पीरियड टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल. अब यहाँ पे वन सर्कल तो डिफाइन कर ही नहीं सकते, आप कैसे करोगे? बट ऑफ कोर्स यू कैन डिफाइन कि इस पॉइंट से पूरा राउंड कंप्लीट आने के बाद वापस यहां तक आने के बाद कितना टाइम लगता है, दैट इज वन सर्कल. और यू कैन डिफाइन हाफ द टाइम पीरियड. हाफ द टाइम पीरियड मतलब एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, वो भी डिफाइन कर सकते हो. तो अप टू यू. तो लेट अस डिफाइन हाफ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इफ यू वांट. बाय द वे, टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हो? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. भूल गए? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. भूल गए? टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन वाज डिस्टेंस upon velocity is distance upon time. Velocity is distance upon time. Time is distance upon velocity. Distance in one complete circle. 2 pi r, 2 pi r by v. What I will do is ये r को मैं यहाँ पे रखूंगा. Do you remember v by r was omega? v equal to r omega. तो v by r is omega, correct? So what is time period? 2 pi by omega. But this is time period for one complete. हमारे पास तो हम यहाँ पे हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं, isn't it? मतलब पाई एंगल की बात कर रहे हैं. सर्कल में टोटल 2 पाई और हम बात कर रहे हैं पाई एंगल की. तो इसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड टू कंप्लीट हाफ सर्कल विल बी पाई बाय ओमेगा. मतलब पाई आर हाफ सरकमफरेंस बाय वी. वहां पे सिर्फ आपने क्या किया? 2 पाई आर बाय वी. यहाँ पे पाई आर बाय वी. So this is the time taken to complete half the circle. Okay. Then what else you can find, or what else do you want to know? और क्या पता होना चाहिए आपको? काइनेटिक एनर्जी, because ultimately हमको तो चाहिए ही हाईली एनर्जेटिक बीम. तो you should know number 1, what is the kinetic energy of the beam when it comes out, or you should know what is the kinetic energy as a function of radius, क्योंकि रेडियस बढ़ते जा रहा है. अभी बाहर कब निकालना है तो हमको पता कैसे लगेगा? विंडो यहाँ डालना है, यहाँ डालना है. हाउ डू यू नो? बेसिकली एज आई जस्ट टोल्ड यू,
velocity and radius are proportional and kinetic energy is also proportional to v square, right? मतलब kinetic energy को डिसाइड कौन करेगा? v को डिसाइड कौन कर रहा है? तो kinetic energy डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ r बना दिया तो गुड, तो इट इज बेटर टू डू। तो अभी क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाउ डू यू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? देन कैसे करोगे? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ओके, do you see v here? r qb by m. From here you will have v equal to r qb by m, half m r qb by m का square, right? So this is half r square q square b square m, और ये m square तो divide by m. So this is equation of kinetic energy. यही आना चाहिए। I don't know books में क्या लिखा है। I think this is the same thing that you get, right? Clear? One last thing we have missed. Ultimately you want to know what is the frequency. What is frequency in this case? मैं इसकी frequency की बात नहीं कर रहा हूँ। I am talking about what is frequency in general. हाँ, but what do you mean by frequency? How many times the motion is repeated per second, right? मतलब how many times, how many circles does this particle complete in 1 second? And frequency is definitely 1 by टाइम पीरियड। याद रखना ये हाफ टाइम पीरियड था और वो कंप्लीट टाइम पीरियड है, गड़बड़ मत कर देना, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। 1/2t, हाफ का डबल तो 2t। यू नो t? यस, यू नो t। सो दिस इज f इक्वल टू 1/2। तो t क्या है? पाई r बाय v, मतलब v बाय, राइट, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी इज दिस, and of course you know what is the equation of v, पता ही है v यहाँ से। so you can put v from here, मैंने अभी भी बताया था क्या था v, r q b by m, right? और ये 2 पाई r तो था ही, कैंसिल और कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया qb by 2 पाई m। तो याद रखना, एक ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी का, एक ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का, एक ये इक्वेशन रेडियस का, और वन दिस इक्वेशन। These are the 4 equations that you will need to solve numericals. Okay, so is this clear? Yes. Will you be able to recall all these formulas? Not recall, but at least can derive. Yes. So let us solve question number 1 on this topic. And by the way, just to tell you, you will see so many mistakes here. An electron is moving with a speed of 3 into 10 power -7. तो -7 तो एक्सेलेरेटर यूज क्यों किया फिर? -7, 0.00000 and then 3. So that is the first correction that you need to make. It is plus over here. अगर माइनस ही चाहिए होता तो डी एक्सेलेरेटर यूज करते ना, एक्सेलेरेटर की यूज करते। Okay, so +7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 power -4 Tesla, perpendicular to its path. What will be the radium? Okay. What will be the radius of the path? What will be the frequency and energy in keV? Okay, so what is given to you? First of all, in the given data, you have electron moving with a speed of 3 into 10 power 7 meter per second. You have the value of magnetic field 6 into 10 power -4 Tesla, and then what else? बाकी का इंफॉर्मेशन तो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज भी पता है, 1 eV का कन्वर्जन फैक्टर दिया है, देना नहीं चाहिए था बट दे दिया एनीवेज, because you need to know this. 1 eV is 1.6 into 10 power -19 joule. At this stage you are supposed to know. So anyways, you are supposed to find out, क्या फाइंड करने के लिए बोला है? नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही होगा यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट यू सपोज टू फाइंड आउट। फॉर्मूला कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा रेडियस के लिए? अभी mv by qb, mv by
QB. नंबर टू you're supposed to find फ्रीक्वेंसी के लिए अभी QB by 2 pi m, QB by 2 pi m. नंबर थ्री एनर्जी अभी Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर by twice m, राइट? तो ये तीनों ही हमने डिराइव किए थे, तो यू नीड टू नो दिस. ओके, सो let us start with solution number 1. R equal to mv by qb. Right? Do you know what is mass? Of course, electron की बात हो रही है तो mass of electron, and that is 9 into 10 power minus 31. Do you know V? Yes, you know V. You know what is charge on electron? Yes. Do you know what is magnetic field? Yes. तो सब कुछ दिया है तो सब्स्टिट्यूट करो. R equal to m, 9 into 10 power minus 31 into V. V कितना था? 3 into 10 power 7 into 10 power 7 upon Q. Q is 1.6 into 10 power minus 19 into B. B was 6 into 10 power minus 4. ठीक है, अभी I don't know if it is correct or not. तो जो भी वैल्यू आएगी 10 power minus 4 आएगी plus 4 है. I have not checked it out, but anyways, 1 and 2 4.5, 1.6 को 16, 10 पावर माइनस 20 क्योंकि इसका पॉइंट हटाया तो माइनस 20 और माइनस 4, माइनस 24 ऊपर जाके प्लस 24 प्लस 24 प्लस 7 31 आंसर. तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट. अभी 4.5 आपको पता है, मैंने बताया था 1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25, 1/8 is 0.125, 1/6 is 0.0625 into 4.5, राइट? तो ये ऑफ कोर्स मीटर में है तो सॉल्व करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू डू दिस. 6.25 into 4.5, या तो एक काम करो और इजी करना तो 45 भी कर सकते हो, 10 पावर minus 2, बट रफली 6.25 into 4, 6 into 4 is 24 और 0.5 into 4 मतलब 1, 24 plus 1 is 25 और इसका हाफ 6.25 का हाफ 3.125 और वो कितना था 25, तो 28.125 into 10 power minus 2 मतलब 0.281 मीटर. इतना आना चाहिए. Now I don't know because they have not mentioned the answer for radius, but I'll check it out from some other source if it is correct. So give me a minute to check out if the answer is correct. There it is. So let me check just a minute. Thank you for your patience. Yes, 0.2812 सही है. Okay, so if it is correct, let us find out second part. Frequency QB by 2 pi m. QB, Q is 1.6 into 10 power minus 19. It is 6 into 10 power minus 4. By the way, answer सही आना tells you that magnetic field की value correct है. So don't worry about this. Upon 2 pi m. What is mass? 9 into 10 power minus 31. Right, again 2 जा 3 जा, ये 2 गया. Right, now what you can do is ये 10 power minus 31 ऊपर, तो पहले एक काम करते हैं 1.6 तो मैं 16 लिख देता हूं और 3 पाई को अलग लिख देता हूं, बाद में इसको करेंगे. 10 पावर minus 19 and minus 4 is minus 23, ऊपर जाके 10 पर minus 31 ऊपर जाके plus 31 minus 23 plus 31 8, 10 पावर 8 करेक्ट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी 10 पावर 7, 8, 9 ऐसा ही आता है. ओके, तो दैट इज नथिंग रॉन्ग हियर. बाय द वे आपको बताया था मैंने 1/pi is 0.318, but 1/3 is also 0.333. तो ये 0. एक काम करो, बेटर 1/3 कितना 0.3, 1/pi कितना 0.3, मतलब ये 0.3 का स्क्वायर लिख लो अप्रोक्सीमेटली into 16 into 10 power 8.
0.3 का स्क्वायर मतलब 9 into 10 power minus 2 into 16 into 10 power 8. So this is 10 power 6, right? Or 16 9s are 160, 144. Correct? 144 है ना? Yes. 144 into 10 power 6 और frequency is in hertz, 1/second. ये इनका थोड़ा गलत है, 18.7 नहीं आएगा. My answer is also not exact. Okay, पर ये मेगा हर्ट्ज में है तो दैट इज करेक्ट. सो व्हाट दे हैव डन इज, बाय द वे, मेगा हर्ट्ज, तो 144 ऐसा आपका आ रहा है. सिर्फ एक बार चेक कर लो. 0.3 स्क्वायर इज, दैट इज करेक्ट, दिस इज राइट, 6 इज राइट, दैट इज करेक्ट. ओके, तो लगभग सब सही चल रहा है. सो डोंट वरी, कैलकुलेशंस यू कैन चेक इट आउट, खुद कर लेना. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऐसा इसको हाफ डन छोड़ के रखता हूं, बाकी आपको कंप्लीट करना है. यू आर सपोज टू कंप्लीट दिस. ओके, तो कैलकुलेशंस आर पार्ट ऑफ असाइनमेंट. डू इट योरसेल्फ, DIY. नेक्स्ट, एनर्जी का भी फॉर्मूला है आपके पास, Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2m. Q स्क्वायर मतलब अभी मैं 1.6 नहीं लिखूंगा, आई विल राइट डाउन 16 into 10 power minus 20 का स्क्वायर. ओके, और रेडियस कितना था? 0.28 का स्क्वायर, 0.28 का स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 6 into 10 power minus 4 उसका स्क्वायर. तो मैग्नेटिक फील्ड था 6 into 10 power minus 4 का स्क्वायर अपॉन 2 times of mass, 2 into 9 into 10 power minus 31. राइट, ट्राई करते हैं रफली कैलकुलेट करने की. इसी कितना आता है? 16 स्क्वायर इज 256 और 10 power minus 20 का स्क्वायर 10 power minus 40. 256 into 10 power minus 40 into 0.28 को 0.3 मान लेते हैं. 3 into 10 power minus 1 का स्क्वायर, 9 into 10 power minus 2, 9 into 10 power minus 2 into 6 square is 36 into 10 power minus 8 upon 2 into mass was 9 into 10 power minus 31. cancel 1 जा 18 जा 10 power minus 31. ऊपर का 50 है, -8 -2 एंड -40 50, और ये ऊपर आके प्लस होगा तो 10 पावर minus 19 आएगा. 256 into 18, ये आ गया आपका आंसर जूल में. दिस इज इन जूल. क्यों जूल? चार्ज वाज इन कूलम, R वाज इन मीटर, B इज इन टेस्ला, M इज इन किलोग्राम, एवरीथिंग ऐसा है तो दिस इज ऐसा है. जूल. आपको क्या बोला है? इन EV बोला गया क्वेश्चन में. फाइंड आउट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 power minus 19 जूल. मतलब 1 जूल इज 1 upon 1 electron volt is 1.6 into 10 power minus 19 joule. So 1 joule is 1 upon 1.6 into 10 power minus 19 EV. मतलब कुछ नहीं करना है आपको करना इतना ही है कि you have to divide by charge on electron to convert from joule to EV. ओके, तो पहले मैं ये जो जूल का था उसको जूल में रख देता हूं. सो दिस वाज इन जूल. और बाद में मैं जब ईवी में कन्वर्ट कर रहा हूं, याद रखना जूल से ईवी में आने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. जूल से ईवी में आने के लिए और ईवी से जूल के लिए मल्टीप्लाई, और इजी कर देते हैं. व्हाई यू नीड टू पुट सो मच ऑफ मेमोरी? यूज योर मेमोरी. ये जूल में था. आपने क्या बोला कि ईवी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड. अरे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इधर ई लिखा तो उसको कैंसिल करने के लिए इधर ई लिखना ही पड़ेगा. क्लियर?
वापस किसमें था, जूल में। आपको किसमें चाहिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर ई लिखा था क्या, हाँ तो नीचे भी ई लिखना पड़ेगा तब कन्वर्ट होगा ना, करेक्ट, राइट, बिकॉज ये कन्वर्जन फैक्टर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, तो यू नीड टू रिमेंबर, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना, कैंसल कैंसल, ओके। नाउ अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट ही बताने वाला हूँ, दिस इज 16 × 10⁻⁻1, ऊपर जाके 10, तो 256 into 18 into 10 upon 16, this is 9 जा, this is 8 जा, good, this is 4 जा, this is 5 जा, good, this is ये 16 स्क्वायर था, 16 स्क्वायर था ना ये, 16 into 16, 1 and 4, 16 4 64, 64 into 9 roughly 10, 640 into 10 power in, or 5 years, sorry, forgot this, roughly 640 into 5, 3200 approximately, 64 into 10 कितना, 640 into 5 कितना, 3200 approximately। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग, एनर्जी, मतलब कितना आया 3200 EV, मतलब 3 पॉइंट, अभी 3200 है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3.2 into 10 power 3 लिख सकते हो ऐसा, यस, तो 3.2 keV, ओके। मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया, आई एम टेलिंग यू, लेट अस सी, 2.53 हमारा कितना आया, 3, क्योंकि वी हैव डन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, तो अगेन exact calculations are part of your home assignment, so I am not going to keep this here, delete, so here you will get 2.53 something keV, kilo electron volt. So that is the end of this chapter, okay, so we'll stop here for today.